Hello and welcome to another enlightening episode of Mind Matters, where we explore the connections between mental health, well being, and many other factors that shape our lives. I am Kaustubi, and today we are diving into a topic that is often overlooked: how hearing and speech impact mental health and overall development. Joining us is a highly respected expert in the field, Dr. Rupali Vani, an audiologist dedicated to helping individuals improve their hearing, speech, and communication skills. She works closely with children and adults, helping them overcome challenges related to hearing loss, speech disorders, and more. Dr. Rupali, welcome to the show. Thank you very much. I have a great feeling about here to being there. And really the topic which you have given to me, I'm very enlightened to give the insight about the same thing. Definitely, ma'am. So, ma'am, my first question to you is कि usually लोग mental health और hearing disorders को link नहीं करते. So, can you help us understand कि जो hearing loss होता है और speech issues होते हैं वो हमारी mental health को कैसे impact करते हैं? Basically, what we do is a communication. We are a human. We are a basic, our nature is to communicate, to connect and all. So hearing loss and the mental health is very correlated because it shows that how you are attached to the people, how you deliver your feelings, how you express your thing, which everything comes with the expression of your emotions and all, which we do it by language, which is a speech. And if you hear it, you reciprocate us very well. So normally it happens that people just see it as a different sense, like we see as a sight, we see as a hearing. So they just close their thinking till the closing of just being a hearing. But it is very much attached to the well-being of a person, because if you don't hear it, you feel frustrated, you feel isolated, you feel very out of the people, like the communication wise, you feel that you cannot express, people make fun of you, so you just avoid yourself to being in a people and all. So even that impact your cognitive ability also, because then you don't think much, you don't go in a deeper way, and then it leads to a depression, anxiety, and other mental issues. So definitely we can say that it is very directly correlated and all, and we have seen people facing the situations in day-to-day life. Right. So, ma'am, also loud music and extra noise, ये हमारे hearing loss या फिर जो speech impairments वगैरह होते हैं, इन सबको कैसे affect करती है? See, everything people loves is allowed nowadays. If you see, bright light, bright colors, bright music, very loud music and all, but definitely anything which goes beyond certain limit is going to hamper. Even the traffic noise and everything is going to impact us, because today we are not feeling, because it is ongoing process. But as we will be in that process for a longer time, definitely it is going to hamper our hearing. The moment it hampers your hearing, if you don't hear the sound clearly, you will not able to pronounce it clearly. Like for example, आपने मुझसे मांग लिया कि मैडम मुझे थाली दो, and I hear it as मैडम मुझे थाली दो. The whole communication is changed. So this is what happens when you are in a noisy environment. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सुनाई नहीं देता है, but आप जो पहले आसानी से फोन पिकअप कर सकते थे, डिस्टेंस पे खड़े हुए आदमी को सुन सकते थे, gradually your capability to understand that will reduce it. So people will not understand in a very immediate effect, but it is very gradually developing problem. स्पीच थेरेपी को यूजुअली सिर्फ छोटे बच्चों से एसोसिएट किया जाता है, बट इज इट बेनिफिशियल फॉर ऑल एजेस? तो ऐसे कॉमन साइंस क्या है कि किसी इंसान को स्पीच थेरेपी की जरूरत हो सकती है? I'll tell you very funny thing. Like, when I started my practice at around 27 years ago, people used to call me कि मेरे बच्चे की एग्जाम्स है, उसको बोलना नहीं आता है, आप उसको प्लीज बोलना सिखा दो. That correlated with the tuition teacher, with the speech therapist, which is not nowadays, thanks to internet and the social media, which have made the awareness. And still there are the stigma, there is a little, I can say not little, but lack of information are still there, that people think speech therapy मतलब सिर्फ बच्चा जो टुटलाता है, हकलाता है, या तो फिर बोलता नहीं है, इसके लिए. अपने इंडिया में तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि अपने दादी वगैरह का इम्पैक्ट बहुत होता है, ओल्ड एज पीपल का. अरे तू भी 4 साल पे बोली थी तो बच्चा भी 4 पे बोलेगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. Speech therapy is a very big domain actually.
वी वर्क विद चिल्ड्रन, हम बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, एडल्ट के साथ भी वर्क करते हैं। स्पेशली स्ट्रोक पेशेंट, जैसे पैरालिसिस हो गया, उसके बाद आपकी कैपेसिटी टू स्पीच इज डिटोरिएटेड बिकॉज ऑफ अ ब्रेन के कुछ हिस्सों में आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। सो देयर आल्सो यू फाइंड इट देयर इज अ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, जहां पे एक इंसान को दूसरे इंसान को अपने फीलिंग्स, अपने मैसेज देने में प्रॉब्लम होता है, वहां पे हमारा वर्क आता है। So it is not limited to a child. It is a very, right from birth to end, we are there to help the people for all age group like that. मैम, जो ऑटिज्म जैसी कंडीशंस होती हैं, इनमें स्पीच थेरेपी कैसे हेल्प करती है? I'll say the speech therapy works, as I told you before also, कि communication, connection. Autism में generally बच्चा connect नहीं कर पाता है to the other people around. So what we do as a speech therapist, there are different type of activity we do where we teach them non-verbal communication, normal communications, speech related. There are different techniques we use. We use certain devices, augmentative approach also, which helps them to connect with the people and surrounding, and which helps them to come out with their expressions, feeling, need-based things. There are many times we use as a sign or a gestures to make them understand, picture cards and all that thing. So it's very actually an interesting process to deliver and to get a response from the child who's having autism and all. Not even autism, I will say that every child who's lacking in speech and language development, especially the speech development, which leads to a language development, delay in a language development. So what we do is we try to enhance that ability by different activity, by different therapy, by different procedures in terms of like sometimes we use even a music therapy, sometimes we use something like a repetitive response therapy and all that. सो मैम, न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है आफ्टर बर्थ, सो वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? एंड अगर आपकी कोई भी हियरिंग डिसेबिलिटीज सही टाइम पे डायग्नोज नहीं हुई, तो फिर उससे आगे क्या इश्यूज हो सकते हैं? First thing, the newborn hearing screening, एक कंसेप्ट अभी तक इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, विच वी आर वर्किंग वेरी हार्डली, हमारी होल कम्युनिटी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच की, कि बच्चे को जब बर्थ होता है तो नाउडेज हम लोग पीडियाट्रिशियन को बुलाते हैं तो चेक करने की बच्चा बराबर है कि नहीं है। इसके साथ अगर हियरिंग टेस्टिंग भी हम करा लेते हैं, जो जनरली वी डू इट जस्ट अ न्यूबॉर्न बेबी, इट गिव्स अस द आइडिया कि ही इज इन अ रिस्क एरिया और नॉट इन अ रिस्क एरिया। If he is there in the risk area, we just keep on doing a follow-up. Follow-up say gradually, because there are many multiple places time it happens that because of wax है, because of fluid है, तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो अगर ये चीजों में हम पहले से ध्यान दे दें कि ओके बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अभी वो 6 महीने का हो गया, मेरे नेम कॉलिंग पे या आवाज देने पे नहीं सुन रहा है, तो अगर इस टाइम पे भी अगर पेरेंट्स अलर्ट हो जाए और टेस्टिंग कर दे, और उसमें अगर हमें पता चलता है कि चाइल्ड इज फेसिंग अ डिफिकल्टी इन अ हियरिंग, तो हम उसकी आगे की लाइफ के लिए पहले से एक्शन ले सकते हैं। स्पेशली उसको जैसे अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फर्स्ट तो वी रेकमेंड टू एनी चाइल्ड और एनी पेरेंट्स जिनको पता चलता है कि अगर उनको डाउट है कि हियरिंग इशू है, तो आप डॉक्टर्स को दिखाओ, पीडियाट्रिशियन को दिखाओ, देन कम टू द ऑडियोलॉजिस्ट। एंड न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग में वी जस्ट पुट अ इंस्ट्रूमेंट फॉर अ फ्यू सेकंड्स and we get the report in that, जिससे पता चलता है he is on a part of a risk or not। और अगर है तो जैसे आपने पूछा कि आगे क्या कर सकते हैं, तो हम उनके लिए हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट है, या तो फिर उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, तो we can process according to that आगे। Hearing loss is not just a physical issue, right? It's not just ऐसे कि हो गया ठीक है, but it also affects a person's mental health, and not just the person's mental health but also that person's family and their loved ones. So what exactly is the problem we face there, and उसके solutions क्या रहते हैं? फर्स्ट थिंग आई टेल यू कि नॉर्मल लाइफ में, फर्स्ट इंडिया में इट्स अ टैबू अभी भी टू हैव अ हियरिंग लॉस। पीपल थिंक कि अगर मैंने बोल दिया कि मुझे कम सुनाई देता है तो मैं बहरी हूँ या मैं बहरा हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जस्ट टू फील दैट, कई बार जानने के बाद भी दे डोंट टॉक टू पीपल, दे अवॉइड। अरे मेरा ध्यान नहीं था, अरे मैं तो टीवी देख रही थी, अरे मैं तो बुक पढ़ रहा था इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। बट आइडियली स्पीकिंग, अगर
आपको ऐसा कभी भी ऐसा लगता है कि हियरिंग इश्यूज आ रहे हैं, या तो जैसे मुझे जैसे मुझे नॉर्मल कम्युनिकेशन में बार बार रिपीटेशन करना पड़ रहा है या मुझे लोगों को पूछना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है दैट इज अ इंडिकेशन दैट यस हियरिंग लॉस इज देयर। और वो हियरिंग लॉस के लिए अगर हम टेस्टिंग कराते हैं, जैसे ऑडियोमेट्री टेस्टिंग है, जिसमें इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री टेस्टिंग है, जो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बात कर रहे हैं और अचानक अगर कनेक्शन लूज हो जाएगा या आवाज चली जाएगी, वी बिकम वेरी पैनिक, करेक्ट? सो इमेजिन कि आपके डे टू डे लाइफ में आपको धुंधला दिखता है, वैसे धुंधला सुनता है, सुनाई देता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन, उससे जो आपको एंजाइटी डेवलप होती है, वो आगे जाके आपको डिप्रेशन, लोगों से दूर करना, एग्रेसिव बनना भी हो जाता है कई बार। तो टीन एज, यंग एज वाले स्टूडेंट्स सब एग्रेसिव हो जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो वो सारी चीजें बहुत इम्पैक्ट करती है हियरिंग लॉस की। इट्स नॉट जस्ट, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हियरिंग लॉस दिखता नहीं है। आई साइट में कुछ भी हुआ, यू विल रन टू द डॉक्टर। आपको अगर पैर में कुछ लगे, आपके दांत से खून आ गया, आप भाग के जाओगे डॉक्टर के पास। बट हियरिंग लॉस इज नॉट लाइक कि ऑन द मोमेंट होता है, इट्स ग्रेजुअली डेवलपिंग। तो इसके लिए अगर आप रेपिटेडली टेस्टिंग कराते हैं, जैसे आप आई चेकअप कराते हो, कुछ एज के बाद पीपल डू फॉर ईयरली हेल्थ चेकअप एंड ऑल, अगर उसके साथ साथ ऑडियोमेट्री टेस्टिंग भी करा ले, तो आप काफी पहले से इसको पकड़ सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप उसके आपकी लाइफ में उसके इम्पैक्ट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो। वुड यू टेल अस अबाउट जो बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं? फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंडीशन जहाँ पे वी जस्ट हेयर अ रिंगिंग साउंड इन आवर ईयर्स, सो वुड यू टेल अस अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कॉमन सिम्टम्स जो पीपल फेस करते हैं, उन्हें वहां पे वो चीज सीरियसली ले लेनी चाहिए rather देन उसके ग्रो होने के? First thing I'll tell you, nowadays we all are on a phone, we all are with the headphones, earphones and all. हमें एक हैबिट डेवलप कर दी है कि हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें गाने सुनने ही सुनने हैं। हमें कुछ ना कुछ तो कान में लगा के ही चलना है, which triggers a overstimulation of your hearing sensitivity. अगर आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे लगातार हेडफोन या कुछ यूज करते हो, तो ग्रेजुअली आपकी जो कंडीशन है अबाउट द हियरिंग की, वो डिटोरिएट हो सकती है। यंग एज में नहीं होगी, बट जो चीज 70 साल में होने वाली थी वो आपकी 50 में हो सकती है। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो, रिक्शा वगैरह से जाते हो, तो नॉर्मली जो ट्रैफिक नॉइज है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 90 डीबी के ऊपर, विच इज क्वाइट हार्मफुल अगर आप लंबे टाइम तक उसमें रहते हो। और यही सारी चीजें शुरू कहाँ से ट्रिगर होती है? रिंगिंग ऑफ साउंड। कई बार आपको पता चलेगा कि आपको बहुत कोल्ड कफ है, तो रिंगिंग ऑफ साउंड आता है, फिर चला जाता है, वी इग्नोर दैट। अगर वो गया दैट इज फाइन, बट अगर आपको फ्रीक्वेंटली आता है, जैसे अगर आप nowadays we have a call centers and other things also where we are constantly in a communication like phone पे और लेक्चर्स में या तो मीटिंग्स में, तो उस टाइम पे जब ओवर स्टिमुलेशन होता है तो आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम, वी कॉल एज टिनाइटिस, रिंगिंग ऑफ ईयर्स, सो वो होता है। जब भी आपको ये होता है और लगातार होता है, इट्स राइट टाइम टू गो टू द ऑडियोलॉजिस्ट एंड ईएनटी। कई बार वैक्स की वजह से भी होता है, वंस यू रिमूव द वैक्स इट गोज ऑफ। पहली बात तो फर्स्ट स्टेप दैट जाना, टू अप्रोच समवन बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी रूटीन से कुछ भी आपको डिफरेंट लगता है, आपको एक बार तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू लैंड अप विथ यू कि आपको हियरिंग लॉस ही हो गया है या आपको मशीन ही पहनना है या आपको सर्जरी ही करना है, इट्स नॉट दैट। ये सब चीजों के पहले ये सारी कंडीशन होती है। रिंगिंग ऑफ साउंड अलग अलग टाइप के आते हैं, कभी किसी को हवा की आती है, कभी किसी को हिजिंग की आती है, कभी किसी को जैसे नाइट, कई पेशेंट बोलते हैं रात कीड़े की जैसे आवाज आती है। दिस आर द डिफरेंट टोन्स एंड साउंड्स। द मोमेंट यू फील इट, अप्रोच द डॉक्टर। How you can avoid it? Actually tinnitus never goes off ऐसा, मतलब it is not a completely treatable, but gradually if you start taking care about yourself, आप कफ कोल्ड अवॉइड करो, आप नॉइज एनवायरनमेंट अवॉइड करो, आप थोड़ा मेडिटेशन करो, आप थोड़ा सा अगर अपने आप को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह में रखो और म्यूजिक वगैरह पे अपने आप को एनक्रोच करोगे, तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। वरना वी हैव सीन इट अक्रॉस people who are having a hearing loss, around 25% people
they feel depression because of a tinnitus. They feel irritation, depression, isolation, avoidance behaviors because of tinnitus. तो अगर हम उसमें प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, अगर हम प्रॉपरली we do TRT, which is a tinnitus retraining therapy, जिसमें we teach them to get adapt with the situations gradually. So this is also one of the very mental point, health point, where अगर हम उनको पहले से उस चीज के बारे में समझा दे, हम उनका डर जो होता है, कई बार पेशेंट को डर क्या होता है, टिनाइटिस मतलब मेरे दिमाग में कुछ हो गया है, मेरे ब्रेन में कुछ हो गया है, उससे उनका अटैचमेंट टुवर्ड्स अ लाइफ कम हो जाता है, एक फियर फैक्टर डेवलप हो जाता है. तो अगर हम राइट मेंटली उनको प्रिपेयर कर देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, तो दे आर ओके विद ओके. एक सिंपल से बुखार आया, बॉडी गर्म हुई, मुझे हियरिंग लॉस आ रहा है, टिनाइटिस आ रहा है, बस. सो मैम, हमने यहाँ पे फिजिकल इश्यूज का जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है उसकी बात करी, बट देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे एक इंसान को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन, उसकी वजह से भी स्पीच इश्यूज या फिर हेयरिंग इश्यूज हो सकते हैं. सो आई से हियरिंग तो नहीं, अगर एक्सीडेंटली कुछ हो गया, जैसे वेरी यंग बॉय है, कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया एंड सडनली ही लूज द हियरिंग, सो इट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हिम. तो उस टाइम पे उसको उस सिचुएशन में अपने आप को नॉर्मल स्ट्रीम में एडजस्ट करने के लिए काफी मेंटली स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज सडनली योर द लाइफ इज स्टॉप्ड, योर साउंड इज स्टॉप्ड, यू आर इन अ डीप साइलेंस, व्हिच मेक्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता, इट इज नॉट विजिबल कि यू हैव सम प्रॉब्लम. तो अगर उसमें पार्शियल डेफनेस आता है, जैसे कुछ कुछ साउंड क्लियर नहीं सुनाई देता है, फ्रेंड्स आपका फन करेंगे, वो आपको इरिटेट करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ये सारी चीजें उनको बहुत मेंटली डिस्टर्ब करती है. स्पीच रिलेटेड, यस, अगर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है, कभी कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, कोई इंसिडेंट्स देख लेता है, तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है. मे बी वायलेंस देख लेता है, आजकल गेम्स वगैरह बच्चे बहुत वायलेंटली खेलते हैं वगैरह, उसमें अगर कभी वो देख लेते हैं तो उनके जो एक्सप्रेशन बिहेवियर है वो चेंज होते हैं. सो दे स्टार्ट स्टैमरिंग, और दे स्टार्ट मेनी टाइम्स दे डोंट इवन एक्सप्रेस. और अगर वो लोग में बहुत ज्यादा मतलब स्पीड गेम वगैरह रहता है, तो दिल और कार्टून वगैरह, आपको पता है आजकल बच्चे बहुत देखते हैं, सो व्हेन दे सी दे ट्राई टू मिमिक द कार्टून, व्हिच लैंग्वेज इज नॉट एक्चुअली हाउ वी स्पीक. तो उसकी वजह से वो फिर वही पैटर्न में बोलना या वैसे ही साउंड को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, विच इज डिविएटेड, लाइक वो चेंज हो जाता है, आपके रूटीन से चेंज हो जाता है. तो फिर आप ना फ्रेंड्स के साथ मिक्स हो सकते हो, ना घर वालों के साथ मिक्स होते हो, बिकॉज यू आर विद इन योर ओन सेल्फ. आप वही मोबाइल फोन लेके, इससे लेके जिससे बोलता है, ये सारी चीजें भी इनडायरेक्टली आपको सोशल इंटरेक्शन से दूर करती है, which again land up with the having a more sort of like aloneness, depression, anxiety if you are at the old age. बच्चों में इतना नहीं समझ में आता है उनको, but yes, they also feel frustrated. पर उनका वो चेंज हो जाता है हाइपर एक्टिविटी, because they don't express, they feel उनका स्क्रीमिंग है, फाइटिंग है, तो वो ये सारे बिहेवियर्स में चेंज आ जाता है. मैम, हेयरिंग एड्स और थेरेपी को लेके काफी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो व्हाट आर सम मिथ्स जो आपने लोगों के देखे हैं, सम थिंग्स जो आप यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं? I'll tell you, सबसे मेन थिंग इज हियरिंग लॉस तो सिर्फ ओल्ड एज को होता है, which is not true. It happens to anyone, anytime. This is sometimes people को पता नहीं होता है. There is one condition in our condition which is called as sudden hearing loss, which can happen to anyone, anytime, without any reason. किसी को भी सिंगल साइड डेफनेस हो सकती है कि एक कान से आप अच्छा सुन रहे हैं, एक कान से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, बट नॉर्मली जब तक आपको रियलाइज होता है काफी देर हो जाता है. अगर इस टाइम ऐसी कंडीशन में आप विद इन 48 आवर्स ट्रीटमेंट लेते हो, तो देयर आर फुल चांसेस दैट यू रिकवर योर हियरिंग, बट पीपल इग्नोर अगेन बिकॉज दे डोंट टेक इट सीरियसली. सेकेंड थिंग इज, अगर आप बोलते हो कि अपने यहाँ पे में लोग it is related with the age, or it is related with something called as disability. Okay, कि अरे मैं किसी को बोल दूंगा कि मुझे सुनाई नहीं देता है, तो वो सोचेगा मैं बुढ़ा हो गया या मैं बहरी हो गई हूँ, तो लोग मुझे
सेम वे ट्रीट नहीं करेंगे। तो आई से कि ये सारी चीजें शुरुआत तो कहीं ना कहीं हमारे से ही होती है। अगर हम एज ए इंडिविजुअल ये चीज को इतना कॉमन कर दे, जैसे हमने आजकल स्पेक्टिकल्स को कर दिया है, एक्सेप्टिंग अ पीपल द वे दे आर, आई डोंट थिंक सो दिस विल लीड टू एनी टाइप ऑफ लोननेस या अपने आप को सोशली इंटरेक्ट नहीं करना, क्योंकि उनको डर रहता है, उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि अगर लोग मेरी मजाक उड़ा देंगे या कोई मुझे लो फील करा देगा या कोई मुझे कुछ भी बोल देगा, तो गो दे डोंट रिलेट देयर अदर टैलेंट विद दिस प्रॉब्लम। उनको ये नहीं लगता है कि उनके पास और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो अपने आप को बेटर एंड बेस्ट वे आउटकम दे सकते हैं। तो ये जो एक्सपोजर ऑफ है वो अगर हम एज अ सोसाइटी अगर लोगों के बीच में कॉमन रख दे, जैसे आई चेकअप को कर दिया है, ब्लड चेकअप को कर दिया है। शुरू शुरू में इफ यू रिमेम्बर पीपल यूज्ड टू हैव फियर टू टेल कि अरे मुझे बीपी है, अरे मुझे चश्मा है, चश्मिश चश्मिश करेंगे। आजकल इट्स बिकम अ ट्रेंड, एवरीबॉडी वेयर्स इट। सो अगर हम भी, क्योंकि रिएक्शन तो हम ही करते हैं ना, इट इज वी हु रिएक्ट एंड वी आर द वन हु मेक देम फील दे आर राइट और रॉन्ग। तो अगर हमारा ही कंसेप्ट को क्लियर करते, हम ही उनको वो मेंटल स्ट्रेंथ दे दे rather than giving them a deterioration or some labeling or something, I think तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। थर्ड है कि उनको लगता है हियरिंग एड बहुत एक्सपेंसिव होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। हियरिंग एड हर एक की, जैसे चश्मे का नंबर होता है, हर एक का एक ऑडियोग्राम होता है, ऑडियोग्राम पे और उसकी लाइफस्टाइल पे वो डिसाइड होता है कि उनको कौन सा कैसा बेटर हो सकता है और उस हिसाब से हम दे सकते हैं। स्पीच रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ कि लोगों को एक ये है कि अगर मेरा बच्चा सुनता नहीं है तो वो बोलेगा भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सुनता नहीं है, आप उसको हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउडेज अवेलेबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उससे आप उसको रेगुलर स्ट्रीम में डाल सकते हो। उसके लिए उसको साइन लैंग्वेज ही सिखाना इज नॉट द आउटपुट। और लोगों को वो साइन लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। इट इज अ लैंग्वेज। मैं तो चाहूंगी कि हर नॉर्मल भी वो लैंग्वेज सीखे। तो देयर इज, बिकॉज एवरीबडी हैज टू बी, मेरा आप सुनो मैं आपका सुनूं, आप अपना कहो मैं अपना कहूँ, इट्स जस्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज। उसको किसी डिसेबिलिटी से इतना ज्वाइन करना इज रॉन्ग। व्हाट आई प्रेफर, आई पर्सनली फील दैट, एंड आई हैव सीन पीपल अचीविंग अ वेरी गुड लेवल इन देयर सोशल फाइनेंशियल लेवल। कई बच्चे हैं ऐसे जो आज बैंक में काम करते हैं in spite of having a childhood hearing loss. But with the hearing aid, with the cochlear implant, they are living a good life because of a support of a family. अगर फैमिली स्ट्रांग है मेंटली तो वो उनको सपोर्ट करेगी हर चीज को फाइट करने के लिए। बट अगर फैमिली खुद उसको डिसेबल मानेगी तो वो उसके लिए कभी राइट प्लेटफॉर्म नहीं रेडी कर पाए। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द फैमिली एंड एनवायरनमेंट, आई थिंक सो। सो मैम, इवन इफ आपने काफी अपने मैसेजेस हम लोग को दिए हैं, बट आई वुड स्टिल आस्क कि एक लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगे इन जनरल, एंड ऑल्सो द पीपल जो हेजिडेंट होते हैं हियरिंग और स्पीच इश्यूज के लिए हेल्प लेने में। I'll say everything starts with home. Okay, so first thing है accept, but try to find out the way. The life has to move on. Labeling, shadowing is not the solution. अगर आप आज उसको शेडो करोगे कि चलो बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, may not be that condition will change. But taking a step ahead, it is like, you know, घर में शादी है तो you prepare to do the best. Your life is something like that, a celebration. So when your life is a celebration, celebrate in a right way with a whole and soul. जितने भी आपको मिलते हैं इनपुट, या जितने भी आप, मुझे लगता है कि जितने भी आप एक्सेसिबल हो सकते हो, रीच आउट टू द पीपल, दे विल हेल्प यू, नॉट एवरीबडी विल क्रिटिसाइज यू। तो ये जो मेंटल, आई थिंक सो, मेंटल स्ट्रेंथ जो आपकी खुद की होनी चाहिए या आपके फैमिली वालों की होनी चाहिए, वो अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट। अगर हम हमारा माइंडसेट चेंज कर देंगे टुवर्ड्स लुकिंग टू द हियरिंग लॉस or speech related or autistic children, I think so the world will be much better place to stay with this type of people, because everything has a solution. When there is a problem, there is a solution. Only we have to hit it in a right time, right away. तो अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं सबको एक ही दूंगी कि अगर आपके आसपास
आपको अगर लगता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो बी अ सपोर्टर, नॉट अ क्रिटिसाइजर. टेक देम टू द राइट पीपल, let them approach to the right people, and make their life also easy and your life also easy with them, especially your family people. I'll say that because they are the first one to stay with them, and there is always a people out there to help them. Only they have to just show the one finger, they'll give the whole hand to them. So it's just taking a right time, right call, I say. Ma'am, this has been such an eye-opening conversation with you. But I would also like to ask for anyone who wants to learn more or reach out to you, so where can they find you? I have a center in Borivali with the name of Vani Orika. Anybody can find me on a Facebook, Instagram, or personally, they can approach me. Uh, Either you can search as Rupali Vani or you can search as a Vani Orika. I'm practicing in Borivali Jamli Gali from last 27 years, and I'm open to meet any questions, any people who whatever they have, because everything starts with the communication. Once you communicate, there will be always answers for that. My personal number is also available, which you can share it to them and they can approach me anytime. Sure, ma'am. Thank you so much for joining us today, ma'am. And to our listeners, remember communication is at the heart of our mental well being. Take care of your hearing, your voice, and your mind. See you in the next episode of Mind Matters.